and welcome to all my viewers in today's class. Today we are supposed to start with question number 6, exercise 13.7, NCERT, surface area and volume. 5 questions of this exercise already we have discussed in my previous video. If you want, you can watch it. We will begin with question number 6. Let me show you it from the book. The volume of a right circular cone. Okay, directly they have given us volume. If the diameter of the base and the diameter of the base also they have given, this is diameter. Radius, it is very easy for us to find out from here. We have to find 3 things here. First is height, second is slant height, and the third one is curved surface area. Okay, one extra thing they are asking, तो वो यहाँ पे क्या डाल दिया, CSA of cone. Okay, that is not that much difficult for us to find out. What is given to us? Question number 6, we are given with the diameter. Diameter is equal to 28 centimeter. Radius will be 14 centimeter. Volume is also given. Volume of cone, that is 9856 centimeter cube. We can make use of formula here, that is 1 by 3 pi r square h equals to 9856. We have r here, 1 by 3 pi 22 upon 7. R is 14. Because it is square, I will multiply it with 14 again. That h we can find out here from here. 9856. 7 के टेबल से हम इसको कट कर सकते हैं बाय द टेबल ऑफ 2. बाकी और कुछ नहीं हो रहा तो हम दूसरी साइड ले जाएंगे. h इज इक्वल टू 9856 multiply by 3 and divided by 22 multiply by 2 multiply by 14. Okay, if you want to cut this with the table of 22, directly it can go. Okay, let me see. By the table of 14 it can go 14 7 are 98 0, and by the table of 22 also it can go 3 32. 2 की टेबल से इसको कट करेंगे, you will get 16. What is the value of h? 16 multiply by 3, that is 48 centimeter. First part of the question is solved, that is 48 centimeter is the height of that particular cone. Next, in the second part they are asking slant height. Slant height means L square is equal to R square plus H square. L square is equal to, what is the value of R? That is 14. Square of 14 and square of 48. Fine. Square of 14 is equal to 196 and square of 48 will be 2304. You can add the both, you will get 2500. That is L square. What is the value of L? That is 50 centimeter. Second part of this question is also solved. L we got find, that is slant height. Third part mein they are asking about the CSA of cone. Do you remember the formula? We have discussed about it a lot in the previous video. 22 upon 7 multiply by R will be taken as, R is given 14. L we have find out here, that is 50. By the table of 7 you can cut 22 multiply by 2, 44 multiply by 50. If you want to get your answer, you will get 2200 centimeter square is the curved surface area of that particular cone. That was parts were there, but the question was not at all difficult. Okay, let's move on to question number 7. I just want to show you the question from my book. A right triangle ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved around about the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. Okay, these are the 3 sides and we have to revolve it around the side 12 cm. Okay, we have a triangle here. ओके, दिस इज़ बेस 5 सेंटीमीटर हमने कम लिया है, ये हमने 12 लिया और सबसे जो बड़ा होता है दैट इज़ अवर हाइपोटेन्यूज. ये तो हमें पता है राइट सर्कुलर में हमारे पास सबसे छोटा मैंने बेस ले लिया. बेस और हाइट को हम कर सकते हैं एक्सचेंज, बट हाइपोटेन्यूज विल बी द बिगेस्ट वन. हम इसको क्या कर रहे हैं, इस साइड के अराउंड मूव कर रहे हैं
थोड़ा किस तरीके से, इस तरीके से। जब हम इसको मूव करेंगे उस साइड से पकड़ के तो ये कुछ इस तरीके की फिगर बन जाएगी। द फिगर विल बी लाइक दैट ओनली, क्योंकि हमने इस साइड के अराउंड मूव किया है उसे, 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अराउंड मूव किया है, तो द फिगर विल बी लाइक दैट ओनली। ओके, सो द रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर, हाइट विल बी 12 सेंटीमीटर एंड एल विल बी 13 सेंटीमीटर। एंड दे आर आस्किंग कि जो फिगर अब हमारे पास आई है, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन। Okay, that is 1/3 pi r square h. What is value of 22/7? R is 5 into 5. What is the value of height? That is 12. ठीक है, 3 4s are 12. If you want to cut your answer, 22 multiply by 25 multiply by 4 divide by 7. Okay, this is what you will get here. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, ओके, इट विल बी, अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वी कैन लीव आवर आंसर हियर। अगर आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं, 22 को आप 25 को 4 के साथ करेंगे 100, और पाई को एज इट इज़ रखिए क्योंकि कट नहीं हुआ, तो यू कैन लीव योर आंसर इन पाई ऑल्सो, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इन द फर्स्ट पार्ट। ओके, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। वी कैन लीव हियर, हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलते हैं, इफ़ द ट्रायंगल ए बी सी इन क्वेश्चन नंबर 7, जो यही ट्रायंगल थी, इज रिवोल्ड अराउंड। अब हम उसको किस तरीके से रिवोल्व कर लेते हैं, अब हम उसको बेस के अराउंड रिवोल्व कर लेते हैं। जो बेस 5 सेंटीमीटर था ना, मतलब पहले तो ये वर्टिकल तरीके से बनी हुई थी, अब थोड़ा सा इस तरीके से बन जाएगी। जो ट्रायंगल हमारे पास बन के आएगी, इट विल बी लाइक दैट। फाइन, नाउ दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, 5 के अराउंड हमने कर दिया, अब उसको रिवॉल्व, 13 हमारा ये 13 ही रहेगा। नाउ दिस इज़ 12 सेंटीमीटर, इट इज़ लाइक दैट। ठीक है, तो हम सेम फॉर्मूला वी विल यूज़ हियर, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो रेडियस कितना हो चुका है अब हमारा 12, हाइट कितनी बन चुकी है अब हमारे पास 5, 1/3 ओनली दीज टू विल बी एक्सचेंज्ड, पाई r स्क्वायर h। पाई को भी पाई रहने दो, है ना, हमारे लिए इजी रहेगा। आगे चल के आप देखेंगे ये पाई की फॉर्म में रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा हमारे लिए। नाउ द रेडियस इज़ 12 into 12 एंड हाइट हैज़ बिकम 5। ठीक है, 3 के टेबल से आप इसको कट कर सकते हैं। हाँ, इट विल बी 12 मल्टीप्लाई बाई 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बट इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग find the ratio of the volume of the two solids obtained in question number 7 and 8। अब हमें रेशियो निकालना है, जो सॉलिड हमें फर्स्ट फिगर में मिला था, दैट इज़ उसका वॉल्यूम कितना आया था 100 पाई, और जो सेकंड में हमें मिला है उसका वॉल्यूम कितना है 240 पाई। इसलिए मैंने पाई को पाई में रखा था, कट नहीं किया था, क्योंकि वो जाके कैंसिल हो जाना है। नेक्स्ट इज़ 100/240 कट, यहाँ पे आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा क्या हमारे पास 12, तो रेशो क्या आ जाएगा 5:12। दिस इज़ द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कॉन ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अ हीप ऑफ व्हीट, एक ढेर है आपके पास गेहूं का, इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन हुज डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर, सॉरी इट्स इन मीटर, and height is this in meter, find its volume। okay, diameter and height both are given, we can find its volume। the heap is to be covered with a canvas। अब वो जो पूरा हमारे पास कॉनिकल ढेर बना है, उसको एक कैनवस कपड़े से ढकना है, टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन, उसको ढकना है। ढकने के लिए हमें कोई एरिया चाहिए होता है ना, और एरिया कौन सा लगेगा यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे से थोड़ी ढकेंगे हम उसे। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, वो जो कैनवस अब हमें चाहिए कि उसका एरिया निकालना है। ओके, diameter that is 10.5 मीटर, रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास 10.5 डिवाइड बाई 2, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट यू विल गेट 5.25 मीटर। ओके, एंड हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम ऑफ कॉन।
and volume of cone says 1/3 pi r square h. Okay, so what is the value? 1/3 pi will be used as 22/7. Radius is 5.25 multiplied by 5.25 and height is 3. Okay, if you want to cut it by the table of 7, you will get 0.77 ja 49, 3 7 5 ja 7 3 ja 7 5 ja 35. 3 is also being cut. बचा क्या है? 22 multiply by 0.75 multiply by 5.25. If you will multiply this, you will get 86.625 meter cube is the volume of that conical heap. जो heap of wheat है आपके पास, उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 86.625 मीटर क्यूब. अब उसको क्या चाहिए? एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड. कैनवस रिक्वायर्ड, फाइन. एंड एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पाई आर एल. यही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया. द स्टूडेंट दोज हु नो हु हैव सीन द प्रीवियस वीडियोस, 5 विल बी यूज्ड एज 22/7. रेडियस हमारे पास कितना था? 5.25. बट यहाँ पे देखो एल नहीं है हमारे पास, हमें एल निकालना पड़ेगा एक साइड में. एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एच कितना, आर कितना है हमारे पास? 5.25 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. 5.25 का जब आप स्क्वायर करेंगे यू विल गेट 27.5625 प्लस 9 ऐड करें, इट विल बी 36.5625. एल और एल स्क्वायर, एल का वैल्यू क्या आ जाएगा? 36.5625 का आप रूट निकालेंगे और 5.65 का रूट जब आप निकालेंगे तो इट विल बी 6.05. फाइन. जब आप इसका रूट निकालेंगे यू विल गेट 6.05. उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 6.05. ओके, जब आप इनको कट करेंगे, इफ़ यू वांट टू कट इट बाय द टेबल ऑफ 7, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 22 multiply by 0.75 multiply by 6.05, you will get 99.825 meter square, sorry, because this is area. 99.825 meter square will be the area of that particular canvas which is required to convert that heap of wheat. I hope, I expect, I guess that you have understood this questions. If you really do, please do like the video. अपने friends के साथ share करें if it is useful for them also. Subscribe the channel if you are new here or if you haven't subscribed it yet. We will meet in the next video with the exercise 13.8. Okay, till then, goodbye and take care of yourself.